बोलिए। Yes, sir. I could not able to understand hold and HLD, hold acknowledgement scheme, sir. Please explain one more time, sir. What you do not understand? Sir, hold and hold acknowledgement pin, sir. Pin number 31 and 30, sir. अच्छा, ठीक. I just give you the recap of that one. Now, right now in the pin diagram, the DMA controller is not connected. Only you are seeing the microprocessor 8086. So once the DMAC is connected, then DMAC is connected with that particular two pin. I already discussed that particular functioning of the buses under control of and transferring of the releasing of the particular buses for DMA controller for direct memory access. When we discuss the data transfer scheme DTS, तो डेटा ट्रांसफर स्कीम में हम लोग डिस्कस किए थे कि देर आर टू वे टू ट्रांसफर द डेटा. वन इज द प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट and another one is the DMA. Now under programmed input output we have synchronous, asynchronous and interrupt driven input output. Okay. सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट. अब ये तीनों जो हम लोग डिस्कस किए थे, दीज आर इन प्रेजेंस ऑफ द सीपीयू. ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इसमें इंटरवेंशन होता है. इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो भी मूवमेंट होगा वो अंडर कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर सीपीयू होगा. दैट मींस बसेस आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सीपीयू व्हेनेवर दिस टाइप्स ऑफ data transferring occur inside the computer. But in case of DMA, direct memory access, in case of direct memory access, ठीक है ना, DMA controller is just gain the control over the system buses. So for gaining the control over the system buses for movement of data in between memory and you can say peripherals, because under peripherals input, output as well as storage devices comes. तो पेरिफेरल में इनपुट आउटपुट ये तीनों आ जाएगा. तो इन बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल्स, तो मेमोरी एंड पेरिफेरल के बीच में जो भी डेटा मूवमेंट होगा, दैट मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोसेस्ड. अब मूवमेंट जो आपका होगा वो बसेस के थ्रू होगा, एंड at that moment whenever DMA session is logged in, the buses is under control of the DMA controller. Now this two pin is responsible for that. In minimum operating mode, this two pin, this pin name of this pin is the
hold pin, and this pin is the HLDA pin. Now hold is what? Hold is for hold request. Hold request. That means कि whatever request submitted by the, अब इसके बाद आगे भी हम लोग डिस्कस किए थे कि DMA controller को रिक्वेस्ट कहां से आएगा. तो this controller send the request to the particular DMA controller. What types of request? तो direct memory access request. तो दिस कंट्रोलर से जो भी रिक्वेस्ट आएगा डीएमए कंट्रोलर को, वो अपने सुपर बॉस से इसका परमिशन ग्रांट कराना चाहेगा. दैट मींस डीएमए कंट्रोलर जस्ट passes this request through this hold pin. That's why it is the hold request pin. HOLD is the hold request pin. Through this pin, the DMA controller send the particular request to the 8086 microprocessor, and 8086 microprocessor आपका जैसे ही रिक्वेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से एट द मोमेंट रिलीज कर देगा बसेस. तो whatever job is in process, first of all 8086 microprocessor completes that job, and once the job is completed, then after 8086 microprocessor think about the relieving of the buses for DMA controller, ठीक है ना, for initiation of direct memory access. So this hold pin is used by DMA controller to send the request to the 8086 microprocessor, and this HLDA pin is what? HLDA is the hold acknowledgement pin. I already said suggest that hold acknowledgement आपका जो है, that means hold how the DMA controller recognize that the request submitted by DMA controller to the 8086 microprocessor is approved. And how it is approved, how the particular DMA controller recognize that the request is approved by the 8086 microprocessor. So through this pin, CPU, that is 8086 microprocessor, send the acknowledgement to the DMA controller about what types of acknowledgement, about holding the request. That means whatever request submitted by the DMA controller, 8086 microprocessor just take a proper concern about that particular request and give acknowledgement to the DMA controller. And basically that request is for what? That request is for buses, system buses. So once the acknowledgement reach to the DMA controller recognize get the proper acknowledgement by the 8086 microprocessor that the system buses is now under control of DMA controller, and the DMA controller now initiate direct memory access in between the memory and peripheral. So that is the whole about the particular hold and HLDA pin. I think it is clear to you. Yes sir. Now that is the main responsibility. अब इसके बाद भी जब हम लोग DMA controller, various controller discuss करेंगे, so we just discuss DMA controller also. At that moment, this particular section will be discussed again. So इसको हम लोग already discuss किए थे. I don't know why you are not recognizing that fact. Maybe you are not attending that lecture. Now, next we have to discuss. Today I discuss addressing modes of Intel 8086. So before discussion of this, I just want to know, in instruction format we just discuss, under instruction format we discuss the particular slab structure in which there is two sections, OP code and operand. OP code and operand. This is the particular format for the writing instructions for microprocessor, instruction format, and there is one mode field. This field is, we just said, this is the optional field. Optional, that means not mandatory whenever we are writing the instructions for any microprocessor. So during writing of instruction for microprocessor, we just use OP code of the instructions and operand field of the instructions. Like for example, whenever you write move AX BX, that means we are using two sections of the instruction. The first section, this one, and this is the second section. This one is the OP code and this one is the operand.
ठीक है ना, but the mode field is not mentioned here. But whenever you are writing instructions, mode field is automatically designated for that instructions. आपका जो मोड फील्ड है वो ऑटोमेटिकली डेजिग्नेट होता है. तो कोई बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड फील्ड या व्हाट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन सबमिटेड बाय द मोड फील्ड. मोड फील्ड को कोई डिफाइन करिए. एनीवन रेज द हैंड. एनीवन जो मोड फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं. तो मोड फील्ड को अगर डिफाइन करेंगे तो एड्रेसिंग मोड समझ में आएगा. यस, कोई बताइए. मतलब लास्टली एक ही हैंड रेज होता है, सिकंदर चौहान. यस, यही दो तीन नाम है, मनीष, हिमांशु, सिकंदर, यही लोग रेस करते हैं. बाकी लोग कथा सुनते हैं क्या? Sir, I am not sure about that. Sir, a mode field defines that the result is in which manner, that like positive or negative manner, or something like that. जैसे अभी 3-4 लोग हैंड रेज किए, मैंने रैंडमली किसी को अनम्यूट कर दिया, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोड फील्ड. बिकॉज whenever you are raising the hand, that means you want to submit the answer. तो आंसर सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आंसर सबमिशन के लिए आपको रैंडमली मैंने डायरेक्टली किसी को अनम्यूट कर दिया, अलाउ कर दिया अनम्यूट करने के लिए. तो अनम्यूट आप कर लिए अपने को, फिर आप आंसरिंग कर रहे हैं. दैट इज अ पर्टिकुलर मोड इन विच द पर्टिकुलर ऑपरेंड इज सिलेक्टेड. तो यू आर आल्सो ऑपरेंड फॉर दिस मीटिंग. इस मीटिंग के लिए ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग इज ऑपरेंड के जैसा ट्रीट किए जाएंगे. तो ऑपरेंड, अब हमारा जो ऑपरेंड है, इसमें से जो भी स्टूडेंट है, अगर हम हैंड रेज करने के लिए नहीं बोले, हम डायरेक्टली अनम्यूट करने के लिए बोल दें पर्टिकुलर स्टूडेंट को ना. हैंड रेज में तो हमारे पास ऑप्शन है कि जो हैंड रेज किया उसी को हम अनम्यूट करेंगे, करने के लिए परमिशन देंगे. हम डायरेक्टली बोल दिए पीयूष राजपूत अनम्यूट योरसेल्फ. तो दैट इज द डायरेक्ट मोड ऑफ ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ द ऑपरेंड. Yes, sir, here mode field will not work. भैंस बोल रही है. म्यूट कर लीजिए आप लोग. Sir, please mute everyone, sir. There are too many noise. I am giving permission to those students who are raising the hand. Rest of the student is unmuted. तो जो रेज हैंड किए हैं, जिनको अनम्यूट किया, उन्हीं साइड से कुछ आवाज आ रहा है. Sir, Sikandar, from your Yes, side there is some noise. no, sir, no, from my side nothing. Any appropriate sense is occurred. I think, sir, Manish Kumar something ठीक like ठीक, that. okay, no. Sir, बोलिए. sir, if you addressing a of a particular person, then their mode field will not occur. Right, sir? Mode field. If you addressing a specific person, just an example, sir, then their mode field will not occur. It is not necessary. क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए. Sir, as you give an example, I give permissions to all to speak something like that about mode field. Sir, their mode fields will work, and if you say to a particular person, their mode field will not work. Right, sir? Write your whatever suggestion you are giving or mentioning, just write in chat, because you are not audible, properly audible. Okay, sir. So mode field basically specifies the way in which
operand is selected for operation. And you already know that why we are using operand. We are using operand for operand is used for Sir, holding the data, sir. yes, operand is used for holding, yes, your answer, holding the data or value you can say. And now in this case you already know that your data is kept under either memory or registers. The two sections, two area is there used. Memory location or memory operand or memory address is used to keep the data. Registers are also used to keep the particular data. That means data is available either in memory or registers. That means whenever we are retrieving the data, so data is retrieved either from memory location or from any registers. So your mode field is responsible for setting the retrieval area of the data. यानी कि from where the data is retrieved for processing point of view. तो प्रोसेसिंग के लिए आपका डेटा कहाँ से रिट्रीव होगा, कहाँ से निकलेगा, मेमोरी से वहां से डेटा आपका रिट्रीव होगा या रजिस्टर से होगा. और on the basis of this retrieval, the various addressing modes we have, which is varied from microprocessor to microprocessor. So right now, whatever addressing modes we are discussed, that is related to the 8086 microprocessor. ठीक है. तो मोड फील्ड जो हम लोग अभी एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, that is related to the mode field. What are the various mode field? That mode field is designated through the addressing modes of particular microprocessor. So like just whenever you are writing move AX BX, then here your data is moved from one location to another location. Now see, both location is what? Both location is memory or registers? Yes, sir. Register, sir. Yes. रजिस्टर सर. Yes. So that's Register. why addressing mode जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये addressing modes ये दो तरह का होगा, मेमोरी बेस्ड और Register based. register based. Why we are discussing this topic? It is clear to you? Yes, Because sir. through this topic it is clear, we are in a position to clarify that which mode field, which types of which types of mode is used to movement of the data from one location to another location. So movement of data will always occur in between the memory registers and the various other registers. ठीक है. तो यहाँ पर AX BX जो हम लोग लिख रहे हैं, ये AX भी आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, BX भी बेस रजिस्टर है, both are registers. So these types of instruction is known as register based instructions. यानी कि यहाँ पर only registers are used, then these types of instruction is known as register based instructions. Is it clear? So whenever we discuss addressing modes of any particular microprocessor, then you just take proper consideration that why we are discussing this. We are discussing this due to the data handling, and how the data is handled, in which manner data is handled, from where data is moved from within the system. That is totally depends on the mode field. And for this particular section, we have to discuss that particular topic, addressing modes of Intel 8086. So as अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए, just we read this particular instruction. Same thing is written here also. As we know that an instruction performs a specific operation on the specified data, that is operand. ठीक है ना? Hence, the programmer must specify the required data operand for an instruction. तो रिक्वायर्ड डेटा को उसको स्पेसिफाई करना होता है कि वो डेटा आपका कहाँ है. आप वेरिएबल नेम से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं.
So why you are declaring variable? Just for using of that variable in the process by its name, and that variable contains certain data also, because without proper initialization you cannot perform any operation over there. तो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले proper initialization is needed. So whenever you declare the variable, after that the next step is to initialize the variable. So once you initialize the variable, then after you can process that variable, and once you process that variable, the information came into existence, because you already know that process data is known as information. बोलिए सर इनिशियलाइज द वेरिएबल की उसका सर मतलब क्या हुआ सर? पूरा क्यों बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। इनिशियलाइज का मतलब नहीं जानते हो? स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? Suppose if you are writing here अगर हम यहाँ लिख रहे हैं इनपुट ए, ठीक है, देन वी राइट इनपुट बी. Suppose if you want to place some message, you just write enter first number. After that you will take a comma or सेमीकोलन। semicolon or comma, यस सर। both. यस सर, यस सर। अब ये दो नंबर हम लोग इनपुट लिए, इनपुट लेने के बाद वी जस्ट राइट प्रिंट a plus b. So if you want to write here sum is equal to सिंपल प्रोग्राम है, क्योंकि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन यहाँ होता है तो अलग से हमको ए बी को डिक्लेयर करने का नहीं जरूरत है, बट आप डिक्लेयर कर सकते हैं ए बी एज इंटीजर, ठीक है. तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, enter first number, you just write take 12, enter second number 13, sum equal to 25. Space, okay. Okay, so just to recap the particular space, semicolon is used. Otherwise, यहाँ पर भी space, if you want to create the particular space, then you can use semicolon. Otherwise, comma and semicolon both works here. So you can use दोनों काम करेगा आपका, ठीक है ना. अब यहाँ देखिए इनिशियलाइजेशन, अगर हम इसको now what is the difference, you I think आपको मिल गया होगा, डिफरेंस Yes, sir. पता चल रहा होगा. यस सर। When we make it कमेंट। comment, that means initialization
will not occur here. यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ तो a प्लस b का जो वैल्यू जो भी आप लेना चाह रहे थे वो नहीं ले पाए, ठीक है। नाउ दिस इज द रन टाइम, यानी कि एग्जीक्यूशन के समय में यहाँ एंट्री ले रहे हैं। सपोज सेम थिंग इफ यू यूज हियर a इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 13, है ना। नाउ इट विल वर्क। यस सर। This is called initialization. ओके सर। Are you getting the point? यस सर। So either you initialize the variable constantly, or you can initialize the variable at the time of execution of the program. User input is there. So in any manner you have to initialize the particular variable, otherwise the result is affected by the particular variable. That's why initialization आपका जो है होना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। आप ही लोग के लिए हमने इंस्टॉल कर दिया इसको, अदरवाइज हमको की बेसिक से तो मतलब नहीं है। If any types of doubts are there, so in BCA because you are learning Q basic, so I just clear that doubts with Q basic. Sir, which is हाँ, a dynamic? yes, Yes, any question? yes sir. I'm audible, sir? लिखे हैं क्या कुछ? No sir, I'm audible, sir. Sir, थोड़ा सा और, अभी जो बोल रहा था उसका आवाज बहुत साफ आ रहा था, आपका आवाज नेटवर्क कुछ इशू है लगता है। सर आपने जो बतलाया सर वो आवाज आ रहा है क्यों इसका? सर हम लोग का आ रहा, हम लोग को अच्छा से आवाज आ रहा है सिकंदर का। अच्छा पूछिए ना सर से हमारा कि आवाज जो तो आ रहा है जी, अच्छा जो अच्छा से आ रहा है बोल रहे हो। हाँ हाँ, तो पूछिए ना कि सर से वो जो अच्छा जो डायनेमिक बता रहा है वो आप ही पूछ दीजिए, तो क्या बोल रहा हाँ है? वो कर रहे हैं सर। पूछिए तो सर से जो कौन सा उसमें डायनेमिक था और कौन सा स्टैटिक जो था। हाँ सर, वो बताओ। सर डायनामिक स्टैटिक्स था ना सर, जो आप पॉइंट बोले हैं हाँ डायनामिक स्टैटिक्स, हाँ, वही पूछ रहा है सर। कौन सा डायनेमिक है कौन सा स्टैटिक है? कौन सा डायनामिक होगा कौन सा स्टैटिक्स होगा? इनपुट देकर करे डायनेमिक वो हुआ जो यूजर इनपुट ले रहे हैं, वहाँ चेंज कर अच्छा। सकता है ना यूजर। यस सर। और स्टैटिक हुआ जो 12-13 है तो 12-13 ही रह जाएगा। रन टाइम वो इनपुट हुआ वो सर हो गया डायनामिक हाँ नहीं? हाँ हाँ, ओके सर। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर समझ में आ गया ना? ये यस सर। डायनेमिक है, ये आपका स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब कि थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन यू कांट चेंज दिस वैल्यू। डायनेमिक मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू इन ईच पासेस। एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ, जितनी बार आप इसको रन करेंगे उतनी बार आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी बार रन करेंगे दैट मीन्स वी कैन पुट वॉलंटरली, वो सेमीकोलन के चलते वो आ गया, कॉमा देते। सपोज 134 एंड देन 116 150 सम इक्वल टू 150, तो 12-13 की जगह चेंज कर दिए ना। यस सर। कितनी बार दोबारा जब कॉल करेंगे तो वहां फिर से चेंज कर देंगे, वहां वैल्यू डाल सकते हैं 34 67, बट यहाँ एक बार ए और बी का वैल्यू अगर 13 कर दिए तो यहाँ सपोज करो कि अगर पी और क्यू ले लो, ठीक है। और यहाँ पर एक बार प्रिंट करा दो,
print P plus Q. दोनों आपका रन करेगा, एक में स्टैटिक रहेगा, एक में आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो एक में 25 ही आपका प्रिंट करेगा जितनी बार कॉल करेंगे, और एक में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आगे क्लियर हो गया ना? यस सर। अब आपको समझ में आएगा। एड्रेसिंग मोड्स जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो बेसिकली वी फोकस ऑन द डेटा, एंड डेटा जो है माइक्रो प्रोसेसर, जब हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो डेटा इज होल्ड बाय मेमोरी ऑपरेंड और एनी registers, and that register is the register set of particular microprocessor for which we are writing the instructions. So during writing of the instructions, the addressing modes is is in high concern, because जब आप लिखते हैं तो you are not mentioning anything but you are mentioning everything. आप कुछ लिखते नहीं है बट सब कुछ जैसे ही लिखते हैं स्टेटमेंट, आप सब कुछ मेंशन कर देते हैं कि what types of location you are using for handling the data, because whenever you are placing register name or any memory variable name, then the data location is clear, and on the basis of which the name of the addressing mode will be set. तो यहाँ पर हाँ, that means second paragraph वही बता रहा है कि the required operand may be placed in the accumulator register. Yes, बोलिए। सर एड्रेसिंग मोड में सर अलग अलग होता है सर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब सर जैसे कि ओपरेंड जो बताया ना सर, एड्रेसिंग मोड में ओपरेंड, उसमें एड्रेसिंग मोड में सर अलग अलग प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्राम नहीं होता है, डेटा को कैसे ऑपरेंड को कैसे यूज करेंगे वो होता है। प्रोग्रामिंग तो एक ही होगा, इंस्ट्रक्शंस में डेटा को कैसे यूज करेंगे। जैसे अभी आप देखें ना, वेरिएबल के थ्रू यूज कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर इसी में आगे जब डिस्कस करेंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, वेरिएबल के बिना एक तीसरा फॉर्मेट ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं, 70 प्लस 30। अब यहाँ तो कोई वेरिएबल का जरूरत नहीं है। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ डेटा आप किसी लोकेशन पर नहीं, डेटा को डायरेक्ट सप्लाई कर दिए। यहाँ मेमोरी और रजिस्टर का जरूरत ही नहीं यूज किया आपने सीधे 70 और 30 70 एंड 30 को डायरेक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग कर दिया। यानी कि यहाँ पर यू आर नॉट यूजिंग एनी रजिस्टर और एनी मेमोरी लोकेशन। So this program is also executed, and that is termed as बोलिए। सर ये जो वैल्यू है 12 और 13, ये हैं? तो सर ये जो सर वैल्यू है ना 12 और 13, ये सर P और Q मेमोरी में जाके सर ना हो जाएगा सर एलोकेट। क्या बोल रहे हो जी, फिर से बोलो। सर बोल रहे ये जो 12 और 13 दिए हैं सर आउटपुट, हाँ तो ये तो सर P और Q मेमोरी में जाके एलोकेट हो जाएगा ना, बट सर जो नीचे रिजल्ट में दिए हैं 17 और 30 ये तो डायरेक्ट एड्रेसिंग है ना। हाँ हाँ हाँ, ये आपका वैल्यू इटसेल्फ
यानी किसी तरह का लोकेशन यूज नहीं हो रहा, वैल्यू इटसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ द रिजल्ट। यस सर, वही बोल रहे हैं। हाँ, डेटा इज डायरेक्टली यूज, डेटा इज डायरेक्टली यूज इन प्लेस ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन थ्रू द, मतलब एलोकेशन थ्रू द मेमोरी और रजिस्टर्स। रजिस्टर या मेमोरी के थ्रू एलोकेट नहीं होकर ये डायरेक्ट डेटा आपका एलोकेट हो गया। ठीक है, यस सर। उसको भी देखेंगे हम लोग नाउ। तो इसलिए आपको क्या किया, मेंशन किया हुआ है यहाँ, द रिक्वायर्ड ऑपरेंड में बी प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, दैट इज इन जनरल पर्पस रजिस्टर, और इन ए मेमोरी वेरिएबल एड्रेस और लोकेशन। तो यही दो लोकेशन है, मेमोरी या रजिस्टर, जहां पर आपका डेटा होगा। ऑपरेंड दैट इज फॉर डेटा। दैट्स व्हाई डिफिनीशन हम क्या कर देंगे एड्रेसिंग मोड्स का, द वे बाय व्हिच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड फॉर एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। यानी एड्रेसिंग मोड्स इज द वे through which an operand is specified for an instruction। किसी भी इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, कैसे लोकेट किया जाएगा, that will be designated by addressing modes। Now as you know that there are two way to locate the data, one is the register where we keep the data, and another one is the memory where we keep the data। That's why addressing modes जो Intel 8086 का है वो दो तरह का, दो सेक्शन में बटा हुआ है, यानी रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड और मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। ऑल अराउंड देयर इज 8 एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल इन Intel 8086। so we have to discuss total 8 addressing modes, and that addressing modes are responsible for allocation of the operand for any types of operation whenever we are writing instructions for Intel 8086 microprocessor। it is clear? यस सर। Okay, now register based addressing mode जो होगा, that contains two types of addressing mode, register addressing mode and immediate addressing mode। दोनों अभी आप देखें, register addressing mode whenever registers are only responsible for holding the data। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे होंगे ऑटोमेटिकली आप ये तय कर पाएंगे कि ये रजिस्टर बेस्ड जो आपका एड्रेसिंग मोड्स है। क्यों? तो ओनली रजिस्टर्स आर रिस्पांसिबल टू handle the data or move the data from one location to another location। like move ax bx लिख रहे हैं, तो two address instruction लिख रहे हैं, move ax comma bx। now you already know what is ax, what is bx, these are the two 16-bit registers। तो अब हमको ax bx या al bl अगर यूज होगा तो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि ये 8-bit डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हो रहा है, ये 16-bit डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो ax bx cx dx is the naming convention used for 16-bit register। AL, BL, CL, DL is used is the naming convention used for 8-bit registers। So whenever you are writing move AL, BL, that means यहाँ पर AL और BL both are the registers। So your data is moved from one register to another register, and the register is of 8-bit। So 8-bit maximum 8-bit data movement occur over there। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को जब डिफाइन करेंगे तो इन दिस टाइप्स ऑफ या इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग ओनली रजिस्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द डेटा। दैट मींस डेटा इज केप्ट अंडर एनी रजिस्टर, एंड ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन द लोकेशन ऑफ द डेटा विल बी चेंज फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, और एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म फ्रॉम वन रजिस्टर टू अदर रजिस्टर। एक रजिस्टर से डेटा लेकर दूसरे रजिस्टर पर कोई तरह का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब जो अभी हम लोग एग्जांपल लिए, प्रिंट 70+30, तो इमीडिएटली विदाउट यूजिंग एनी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, व्हाई इट कम्स अंडर रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड, कोई बताएंगे? व्हेनेवर, हाँ सर क्योंकि इसमें जो हम सर करते हैं वो तो रजिस्टर में ही ना सर होता है लोकेट, इसलिए। यस यस, यस यानी कि इमीडिएट एड्रेसिंग के लिए भी हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर तो यूज कर रहे हैं ना। यस सर। यस सर। That's why it comes under register based addressing mode। I think it is clear to you both। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर हम जो डेटा भेजेंगे डायरेक्टली, अगर डेटा को ही एलोकेट कर दें ऑपरेशन में, तो that is termed as immediate addressing mode। So I think that whenever any instruction is written, you can easily recognize that this is the register based addressing mode or not। ठीक है ना? तो AX BX सिंगल अगर आप यूज कर रहे हैं वहां पर भी
suppose if any instruction is written in this particular manner, load, ठीक है ना, a, load a लिख रहे हैं, तो whether it comes under one address instruction, yes one Regis- address instruction sir. memory or register. रजिस्टर बेस्ड सर। Add b, ये भी where the particular data is moved, यानी कि यहाँ पर मेमोरी इंटरवेंशन भी है। ए मेमोरी से डेटा आपका लोड कहाँ हो रहा है, लोड का मतलब हो गया कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपका मेमोरी ऑपरेंड ए एलोकेट हो रहा है, और उसके बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो पहले से डेटा है उसमें मेमोरी ऑपरेंड बी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द पर्टिकुलर कंसर्न। सिमिलरली मेमोरी बेस्ड, हाँ बोलिए। यस सर, सॉरी सर, जो 28 लेकर जो डायरेक्ट में जो किए ना सर, वो इमीडिएट एड्रेसिंग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे सर। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ईयरफोन लगाए हो क्या? नो सर। ओके सर, आई विल आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। Sir, in addressing mode, there is 11. हाँ, यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा, कोई अगर इसको ये किसी को ऑडिबल होगा तो क्या पूछना चाह रहा है, पूछिए। Sir, in addressing, there is a huge 11th registered. सर आई जस्ट वांटेड टू नो सर, जो 28 जो करके लिए थे डायरेक्ट, जो लिए थे वेरिएबल, किन्हीं को सुनाई दे रहा हुआ तो सर को बोल दीजिएगा। वो इमीडिएट एड्रेसिंग कैसे हो गया सर, वो विदाउट एनी यूजिंग रजिस्टर? आई डोंट अंडरस्टैंड सर, किन्हीं को सुनाई दे रहा है तो। हेलो सर, हाँ हम सुन रहे भाई। थैंक सर वो बोल रहा है ना कि जो सर डायरेक्ट वहाँ पे इनपुट लिए 17, तो वो सर या 30 वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ही है ना सर। सर कैसे हो गया इमीडिएट कैसे? एड्रेसिंग मोड में, ये पूछ रहा है सर। इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट का मतलब whenever you are giving immediately the data immediately sent to the processor, ठीक है ना। Yes, sir. In place तो of कैसे particular, रजिस्टर? अब हाँ ये बोल रहे हैं कि डेटा कैसे, तो डेटा प्रोग्रामर एंड से डेटा सप्लाई किया जाएगा, यूजर डेटा। जैसे अगर हम लोग 70-30 ले रहे हैं तो ये बीइंग ए प्रोग्रामर यू आर गिविंग द पर्टिकुलर डेटा, आ रहे हैं उस पर डिटेल आ रहे हैं, यस सर, एग्जांपल लेंगे। इस तरह अभी केवल ओवरव्यू दे रहे हैं आपको इमीडिएट एड्रेसिंग का, ठीक है, और रजिस्टर, तो ये दोनों क्लियर होगा, उस पर आ रहे हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग Yes, sir. कैसे हुआ उसको भी बताते हैं। मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड जो आपका है, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में भी रजिस्टर इंटरेक्शन होता है, बट मेमोरी इंटरेक्शन इज ऑल्सो ओवर देयर। यानी मेमोरी बेस्ड में रजिस्टर इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन रजिस्टर के साथ साथ मेन आपका डेटा जो एलोकेशंस होगा वो मेमोरी के बेस पर होगा। यानी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। तो दीज आर द 6 एड्रेसिंग मोड वी हैव टू डिस्कस अंडर मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पर हम फिर से रिकॉल करेंगे कि जब हम लोग एरे डिस्कस किए थे, तो एरे का इफेक्टिव एड्रेस, दैट मीन्स कि एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट निकालने के लिए आपका कुछ एड्रेसिंग एलिमेंट यूज किए थे। जस्ट रिकॉल दैट वन। कौन कौन सा एड्रेसिंग एलिमेंट यूज किए थे सिकंदर? हमारा तो आवाज नहीं आ रहा है। सिकंदर थोड़ा सा लाउडली बोलो, हिंदी में बोलो, तुम इंग्लिश में धीरे धीरे बोलते हो, सोच सोच के। हिंदी में तुम जोर से बोलोगे। बोलिए। नहीं हुआ क्या जी? यस सर, नाउ आई एम ऑडिबल सर। हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ सर, आपने सर बेस एड्रेस की बात की सर।
हाँ। इफेक्ट और समथिंग सर, तो रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन एक बार और। फिर तुम समझने लगता है, इंग्लिश में तुम समझने लगते हो फिर। नहीं सर, हाँ। ऐसा नहीं है सर। सर इफेक्टिव एड्रेस बोले आप, बोले मतलब आपने बोला ये पूछ रहे हैं कि हाँ सर। आप जब हम लोग एरे डिस्कस किए थे, तो Yes, एरे sir. में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस रिट्रीव करने के लिए एड्रेसिंग एलिमेंट कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, वो एड्रेसिंग एलिमेंट का फिर से जरूरत पड़ेगा यहाँ पर भी। यस सर। एड्रेसिंग एलिमेंट के लिए क्या क्या यूज किए थे वहां पर इफेक्टिव Yes, sir. एड्रेस निकालने के लिए? सर जो 3 एलिमेंट था, 3 वो प्रोटोकॉल था, डेटा ट्रांसफर समथिंग, डेटा ट्रांसफर, राम काउंटर। डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन, ये वाला क्या? नहीं। इफेक्टिव एड्रेस के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, कोई भी एरे है, सपोज दिस इज द एरे एंड दिस एरे कंटेन्स सपोज 12 13 14 15 1 2, कोई एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, दिस इज द इंडेक्स, द वैल्यू एंड देयर इज सम एड्रेस ऑफ ईच। तो हम लोग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट का 1000 करते थे, और हाँ अगर सर। इंटीजर होल्ड कर रहा है यानी डिम 10 एज इंटीजर, या ए कितना है 3, अब 3 6 है तो A6 कर दो, A6 एज इंटीजर। तो 6 एज इंटीजर है, इंटीजर एलिमेंट है, तो इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 2 बाइट। सर, इंटीजर 2 बाइट सर। हाँ, सिंगल का तो होता है। इसका जो एड्रेसिंग है ये हम लोग 2 बाइट बढ़ाते थे। यस सर। और किसी भी नोड का सपोज 15 का एड्रेस हमको निकालना Yes, है, sir. अगर एड्रेस सर ऑफ लोकेशन 3, ये लोकेशन 3 है, तो लोकेशन सर 3 का एड्रेस एड्रेसिंग एलिमेंट निकालने के लिए कितना क्या है करते थे? एक स्टार्टिंग एड्रेस प्लस Excuse me, sir. W इंटू लोकेशन करते थे। स्टार्टिंग एड्रेस इज नथिंग, इट इज द बेस एड्रेस, जिसको बोलते थे स्टार्टिंग एड्रेस को एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। याद है ना? यस सर, याद है। हाँ, तो स्टार्टिंग एड्रेस सपोज अगर एज्यूम कर रहे हैं 1000, तो 1000 में इसका वेट क्या है? हर एलिमेंट का वेट 2 Two. बाइट है, 2 Yes, sir. गुना लोकेशन, कौन सा तीसरा लोकेशन का निकालना है, तो 3, तो 1000 प्लस 6 दैट इज 1006। ये 1006 आपका क्या हो गया? यही है ना यहाँ पर 1006। ये इफेक्टिव एड्रेस निकालते थे। अब यहाँ क्या क्या एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हुआ? सर स्टोरिंग एड्रेस, यहाँ पर एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हुआ आपका इंडेक्स, स्टार्टिंग एड्रेस सर। एलिमेंट का इंडेक्स यूज हुआ, इंडेक्स का, इंडेक्स सही ना लिए। यस Then सर, यूज हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट सर, साइज देन यूज हुआ बेस एड्रेस, दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस, और तीसरा क्या यूज हुआ? डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट, साइज, यस सर, दैट इज हियर 2 बाइट यस और सर, इंटीजर। साइज ऑफ ईच एलिमेंट, अगर सिंगल होता तो 4 बाइट, 4 बाइट, ठीक है ना, तो 2 बाइट दैट मीन 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो 16 बिट आपका हर एक ब्लॉक जो है उसका साइज कितना है? 2, 16 बिट, 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो these byte, are the yes. addressing element. यस सर, The same addressing element is used here also whenever we discuss the addressing mode. But what is changed here? Here in place of base address we are using the register name. What is the register name? यानी base addressing के लिए जो register use होगा that is base pointer, base register and base pointer, ठीक है ना? उसी तरह से आपका इंडेक्स रजिस्टर के लिए 2 इंडेक्स रजिस्टर आपको पता है कौन कौन है? इंडेक्स एड्रेसिंग में आपका जो एड्रेसिंग एलिमेंट इंडेक्स रजिस्टर होगा, इंडेक्स रजिस्टर में कौन कौन सा इंडेक्स रजिस्टर है 8086 में? जब आप लोग आगे बढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं जी। सोर्स इंडेक्स, एसआई और डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स,
सर आप जैसे ही बतलाते हैं याद आ जाता है। DI। तो अब वो सब ये सारा जो भी पहले पढ़े हैं ना, सब आगे में सब इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो यूज होगा। ठीक है, तो आई थिंक आफ्टर इंट्रोडक्शन पार्ट यू जस्ट गो थ्रू द पर्टिकुलर रजिस्टर। आई थिंक दैट कि पढ़ने से ही आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में यस सर। next class में whatever query you have, you just generate the query, but I just discuss one by one. But before discussion you just note it down, इसको note कर लीजिएगा कॉपी में। सर हाँ सर स्टोरिंग एड्रेस और बेस एड्रेस सेम ही होता है ना? क्या बोले?